Welcome to video lecture series on AMVI Men's Examination, a complete guide. So we are dealing with section A, module number 4, hydraulics. In last lecture we have studied about the fluids. In this lecture we will study about the properties of the fluid. So this is lecture number 2. So let's start. At the end of this lecture, you are able to answer these kind of the questions. The questions are: the standard atmospheric pressure is 101.325 kilonewton per meter square. 2. 10.33 meter of water column. 3. 76 centimeter of mercury. 4. 1.033 atmosphere. Option A is only 1 and 4 are correct. Option B only 3 and 4 are correct. Option C only 2 and 3 are correct. Option D only all 1, 2, 3, 4 are correct. So we will discuss the answer of this question at the end of this lecture. Second question: the property of the fluid which determines its resistance to shearing stress is called. Option A viscosity, option B compressibility, option C bulk modulus, option D all of these. Question 3: a real practical fluid possesses which of the following properties? Viscosity, compressibility, density, all of these. Question 4: the unit of bulk modulus is Newton per meter square, Newton per meter, kg per meter cube, Newton per meter cube. So we will see the answer of all these questions at the end of this lecture. So first, physical properties of a fluid. We have defined fluid. It is a substance which deforms continuously under the action of shear stress, no matter how small it is. That is known as a fluid. So before defining any property, we have to define the system. Then we have to define the property. Then the types of property, whether it is extensive or intensive. Okay. So let's discuss. So every fluid has a certain characteristic by means of which its physical condition may be described. Okay, physical condition मतलब उसके ऊपर कितना सरफेस टेंशन है, उसका डेंसिटी कितना है, उसके ऊपर प्रेशर कितना है, ओके, उसका विस्कोसिटी कितना है, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उसे हम फ्लूइड के प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ विच इट इज डिस्क्राइब्ड. ये इतने वॉल्यूम का फ्लूइड है तो वो वॉल्यूम क्या हो गया, वहां पे प्रॉपर्टी हो गया. इस फ्लूइड का डेंसिटी इतना है, इसका मतलब है डेंसिटी क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी हो गया. इस फ्लूइड के वजह से इतना सरफेस टेंशन है, उसका मतलब सरफेस टेंशन क्या हुआ, वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी हुआ. ओके, सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. सिस्टम, अ प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर, that is the fluid whose characteristics are under investigation. तो एक जो भी हमने डिसाइड किया है, ओके, आइडेंटिफाई किया है, उसमें इतना इतना क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा. अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक हमको स्टडी में लाने हैं तो उस पूरे जगह को हम बोलेंगे सिस्टम. ओके, सो इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर. इन दिस केस इट इज अ फ्लूइड whose characteristics are under investigation. So in short, anything that is under study, it is known as a system. Property, any characteristic of a system that can be used to define its state, that is known as a property. Then intensive property, a property whose magnitude is independent of the amount of matter. Okay, intensive properties are like प्रेशर, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी. ओके, तो ये चेंज नहीं होते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर. ओके, तो इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. सेकेंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी हुज मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम लाइक मास, वेट, वॉल्यूम एटसेट्रा. सो जो मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके,
जैसे है मास डेंसिटी, तो वाटर का एक ड्रॉप लो या वाटर के बहुत सारे ड्रॉप्स लो, तो उसका जो भी डेंसिटी रहता है, मास डेंसिटी रहता है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है वाटर के लिए. ओके, सो दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, प्रेशर, टेम्परेचर, अगेन एक पॉइंट पे कितना टेम्परेचर, बहुत सारे पॉइंट्स पे कितना टेम्परेचर होगा, तो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर ये डिपेंड नहीं रहते. ओके, सो दीज आर इंडिपेंडेंट on the amount of matter. So these are known as intensive property. Extensive property, a property whose magnitude is related to total mass of the system. Like खुद मास है, वेट है या वॉल्यूम है. ओके, अभी वॉल्यूम कैसे है यहाँ पे, अगर हमने एक बलून कंसिडर किया, बलून के अंदर हमने हवा भरा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा. इट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल मास ऑफ द सिस्टम और amount of the matter present in the system. So volume is an extensive property. Okay, so one main point is I will discuss here. The ratio of any two extensive property is always an intensive property. It can be a question which will be asked in your coming exam. Okay, the ratio of any two extensive properties इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मास और वॉल्यूम का. मास एक प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो दोनों का भी जो रेशियो रहेगा दैट इज नोन एज मास डेंसिटी, दैट वी विल स्टडी. ओके, सी द मास डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो द रेशियो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दैट इज द कंक्लूजन. Let's start with the fluid properties. First, density or mass density, which is denoted by symbol rho. So it is a measure of amount of fluid contained in a given volume. So definition, mass per unit volume. So mathematically, rho is equal to m by v. m is mass and v is your volume. So इसका यूनिट बनता है, मास का यूनिट है kg, v का यूनिट है मीटर क्यूब. So रो का यूनिट बनता है kg पर मीटर क्यूब. ओके, सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब. इफ रो इज कांस्टेंट देन इट इज नोन एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड लाइक वाटर. ओके, वाटर के लिए डेंसिटी उसका जो भी है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है. दैट्स वाई इट इज assumed to be incompressible fluid. Then if rho is not constant, okay, then that type of fluid is known as compressible fluid like air. With the effect of temperature and pressure, the density of the air changes. That's why that is a compressible fluid. इसीलिए compressor में compressible fluid air use होता है और pump में incompressible fluid water use होता है. So some examples of the densities are rho of water is 1000 kg per meter cube. Rho of air standard value एक है 1.208 kg per meter cube. Rho of Hg that is mercury is 13,600 kg per meter cube. Rho of sea water is 1025 kg per meter cube. Rho of ice is 915 kg per meter cube. And the rho is maximum for water which is at 4 degree Celsius. जो भी स्टैंडर्ड रो लेते हैं हम वाटर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो वाटर इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड. दैट्स व्हाई whenever we will define the next property, in that the standard fluid is used as water. So specific volume, it is an inverse of the mass density. So it is volume per unit mass or inverse of the density. So small v is equal to v upon m. 1 by rho, unit will be meter cube per kg, inverse of density. That's why its unit will be also reversed. So more useful in the study of compressible fluid, that is the gases. Specific weight or weight density denoted by gamma or small w. Okay, so it is weight per unit volume. पहले हमने देखा था मास डेंसिटी, सो इट वाज मास पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ इट इज वेट डेंसिटी, सो इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम. सो गामा
और स्मॉल w इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो वेट का यूनिट बनता है न्यूटन, वॉल्यूम का रहता है मीटर क्यूब. सो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब, where w is weight of the fluid having volume v. So gamma is equal to small w is equal to w upon v. W from the Newton's second law is mg, okay, because that is a force. Mg, volume will be volume, okay. So from here you can see that m by v will become rho, because we have just studied the mass density. So m by v will be replaced by rho. So the gamma or small w will be rho g. Gamma or small w will be rho g. So gamma of water will be rho of water into g. Rho of water we know 1000 kg per meter cube. G is 9.81 meter per second square. So gamma of water will become 9810 kg per meter square per meter cube. How it is kg per kg meter per second square and it is meter cube. Just यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है, देखो ये kg पर मीटर क्यूब यहाँ पे लगा दिया और मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख के आया. क्यों? क्योंकि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर it is nothing but your Newton. kg meter per second square is Newton. So it is gamma of water is 9810 Newton per meter cube. Gamma of water is 9810 Newton per meter cube. सिर्फ ये न्यूटन पर मीटर क्यूब कैसे आता है ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है. ओके, सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन. कैसे आया? kg इज मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज योर फोर्स एंड फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन और मीटर क्यूब का मीटर क्यूब. सो गामा ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. So specific gravity denoted by small s, the ratio of specific weight of a fluid to specific weight of a standard fluid, or the ratio of mass density of a fluid to mass density of a standard fluid, that is known as specific gravity. Okay, for liquid standard fluid is water at 4 degrees Celsius, and for gases standard fluid is air at 0 degrees Celsius or hydrogen at same temperature, that is 0 degrees Celsius. So specific gravity is a dimensionless and unitless quantity. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रेशियो है दो सेम क्वांटिटी का. ओके, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड, गिवन फ्लूइड, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड चेंज हुआ है, लेकिन जो भी रेशियो है वो सेम क्वांटिटी का है, दैट इज स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी. So small s is equal to rho of liquid by rho of water, or gamma of liquid by gamma of water. Okay, rho is mass density, gamma is your specific weight. So rho of water is 1000 kg per meter cube. Okay, suppose it is a given liquid is water, then rho of liquid will become 1000 kg per meter cube. So 1000 kg per meter cube by 1000 kg per meter cube will be 1. So specific gravity of water is 1. Specific gravity of Hg is 13.6. How? Because the given liquid is Hg. So rho of Hg is 13,600 kg per meter cube divided by rho of water is 1000 kg per meter cube. So 13,600 divided by 1000 will be 13.6. केरोसिन के लिए 0.8 है क्योंकि उसका डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब रहता है. तो 800 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. सो इट विल बिकम 0.8. तो अभी गामा क्यों आया? क्योंकि रो और गामा में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज जी. ओके, अगर हमने रो को जी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी रो को जी से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बिकम दी गामा, गामा ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर. सो एस इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर और गामा ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर. और कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने यहाँ पे मेंशन की है, जैसे वाटर का है 1,
मर्क्यूरी का है 13.6, केरोसिन का है 0.8। सो यहाँ पे जो भी मर्क्यूरी का 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the specific gravity of mercury is 13.6, that implies that its weight or mass is 13.6 times that of the same volume of water, or in simple words, mercury, that is Hg, is 13.6 times heavier than the water. Okay, so यहाँ पे जो भी specific gravity 13.6 जो दिया है मर्क्यूरी के लिए, इसका मतलब है 13.6 टाइम्स वो वाटर से हेवियर है। ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन कर सकते। अगर कुछ ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें कुछ स्टैंडर्ड डेंसिटी कंपेयर करना है, सो वी यूज रिलेटिव डेंसिटी। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली। अगर कुछ ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करना है, वी कैन डिफाइन इट एज रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, ओके, विच इज रिलेटिव डेंसिटी। ओके, इन रिलेशन विथ वाटर, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे अगर ऐसे डिफाइन करना है तो वो हो जाएगा उसका रिलेटिव डेंसिटी। सो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर रिलेटिव डेंसिटी को हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसीडर करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? जो भी सब्सटेंस है, दैट विल बी अ फ्लूइड। सो रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट सेम, ये याद रखना है आपको। सो नेक्स्ट वन इज प्रेशर, एक्सटर्नल परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। Component of the force which is perpendicular to the area upon which it is acting. Okay, pressure is force per unit area, ऐसे आप define करते हो, but that is not the force, it is the component of the force which is perpendicular to the area upon which it is acting. Consider करो आपका हाथ ऐसे आगे लेना है आपको, okay, और हाथ के ऊपर एक आपका एक उंगली रख दो, और उसके बाद आपका उंगली कैसे है यहाँ पे? इट इज परपेंडिकुलर टू योर हैंड। ओके, वॉट एवर फिंगर यू हैव टेकन, दैट इज परपेंडिकुलर टू योर हैंड। तो वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया अपॉन विच इट इज एक्टिंग। ओके, तब हम उसको बोल सकते हैं प्रेशर। ओके, एंड इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, जो भी प्रेशर रहता है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, that is known as the pressure. So हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, P is equal to F परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है, that is component of the force which is perpendicular to the area upon which it is acting. So component of force F, inverted T वहाँ पे लिखा है, that is the symbol for perpendicular. Okay, so F divided by its area. ओके, सो आपने ये पढ़ा है P इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे जनरेट हुआ? ओके, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू mg, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, LBH, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एक एक यहाँ पे हम पुट करते हैं, फोर्स की जगह पे mg और एरिया की जगह पे LB, और दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे h से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ऐसा कुछ। ओके, जस्ट वी हैव रिप्लेस फोर्स बाय mg, a बाय LB, और दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे h से मल्टीप्लाई किया। ओके, देन whatever that LBH is there, that is nothing but your volume, so LBH will be replaced by volume, LBH रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम, और मास को वैसे ही रखा हमने, और GH को भी वैसे ही रखा। अभी देखिए, मास बाय वॉल्यूम वी हैव स्टडीड, दैट इज नथिंग बट योर रो, सो P इज इक्वल टू रो GH, P इज इक्वल टू रो GH। सो जो प्रेशर का डेफिनेशन हमको पता था, उसके हिसाब से हमने प्रेशर का डेफिनेशन एक मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे हमने क्रिएट किया, दैट इज फॉर द फ्लूइड, रो इंटू G इंटू H is equal to pressure. So units of the pressure: atmospheric
Pascal, Newton per meter square, Newton per centimeter square, meters of water column, mm of hg, ये सारे यूनिट्स है प्रेशर के. ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है एयर का वो रहता है 1.01325 बार. ओके, और वन एटमॉस्फेरिक. तो उसको हम अगर कन्वर्ट करना है हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो कन्वर्जन कैसे, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एयर कितना प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई करता है, दैट इज वन एटमॉस्फेरिक, दैट इज इक्वल टू 1.01325 बार और 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो एक बार कितना हुआ, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल. तो यहाँ पे अलग अलग कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट वन इज पास्कल, दैट इज सेम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल. देन न्यूटन पर mm स्क्वायर में 1.01325 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन in terms of Newton per centimeter square 10.1325. Then in terms of meters of water column 10.33 meters of water column. In terms of mm of hg it is 760 mm of hg, and in terms of torr it is same as mm of hg, that is 760 torr. So one atmospheric pressure के इतने सारे conversion हमने यहाँ पे लिखा है. Okay, so you know how to convert meter square into mm square. ओके, देन मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो भी फैक्टर्स है उसको कन्वर्ट करके हमने वन एटमॉस्फेरिक के बहुत सारे पैरामीटर्स में अलग अलग यूनिट्स में वहाँ पे कन्वर्ट किए. सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेशर. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड द बल्क मॉड्यूलस. सो फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद बोथ कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. When pressure is applied to the fluid, it contracts, and when pressure is released, it expands. This thing we know because of application of the pressure, the thing on which it is applied, it will contract, and when the pressure is released, it will expand. So compressibility is thus the ability of the fluid to change its volume under pressure. Whenever pressure is applied, there will be a change. So ability of the fluid to change its volume under the applied pressure is known as compressibility. The relative change of volume per unit pressure is always given by a coefficient of compressibility, that is beta c. So beta c is equal to minus dv by v upon dp. Okay, minus 1 by v dv by dp. Minus dv by v is nothing but the relative change of the volume per unit applied pressure, that is dp. Okay, why that negative sign is there? Negative sign indicates that whenever there is a increase in pressure, it will create decrease in the volume. That's why that negative sign is there. What is dp? dp is small change in pressure applied to the fluid. dv is change in original volume v, and dv by v is relative change of the volume. But quite often the compressibility is expressed in terms of the bulk modulus of elasticity, that is k, which is inverse of the compressibility. So k is defined as 1 by beta c is equal to minus dp upon dv upon v. Okay, dp is known as compressive force. Okay, dv by v is nothing but your volumetric strain, क्योंकि dv is small change in original volume v. v is your original volume, तो dv by v क्या बना, that is nothing but the volumetric strain. okay, तो जो भी ये strain है that is dimensionless, unitless, इसीलिए k का जो भी unit बनेगा that will be same as the unit of the pressure. That's why unit will be Newton per meter square or Pascal. So K measures the compressive stress per unit volumetric strain. dP
divided by dv by v. Negative sign is there because whenever there is a increase in pressure, there will be a decrease in volume or vice versa. So for a given mass, m is constant. Okay, so fluid density is rho is equal to m by v. Okay, so m is equal to rho into v. Okay, so on differentiating we get dm is equal to rho and v के बीच में u v वाला मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंशिएशन. सो dm is equal to v into d rho plus rho into dv. ओके, दूसरा वाला कांस्टेंट रखना है पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर पहले वाला कांस्टेंट रखना है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन. ओके, सो m इज इक्वल टू रो वी का जो भी डिफरेंशिएशन होगा ये यहाँ पे लिखा है मैंने, dm इज इक्वल टू वी डी रो प्लस रो डी वी. बट इट इज गिवन हियर दैट इट इज गिवन मास. गिवन मास मतलब अ सर्टन मास. सर्टन मास मतलब m इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी भी जीरो होता है. ओके, सो जीरो, dm इज इक्वल टू जीरो, v d रो प्लस रो डी वी. ओके, m इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई dm इज जीरो. तो हमने सिर्फ यहाँ पे जीरो के इसमें v d रो माइनस में लगा दिया और रो डी वी यहाँ पे. उसके बाद थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किया, इट विल बिकम d रो बाय रो इज इक्वल टू माइनस dv बाय v. ओके, सो instead of minus dv by v we can write d rho by rho in bulk modulus. तो जो भी bulk modulus था पहले कैसे था, dp upon minus dv by v था. That minus dv by v is replaced by d rho by rho. So it is the compressive stress dp divided by relative change in the density d rho by rho. d rho by rho represents the relative change in the density of the fluid. तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का एक दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको मिल गया. पहला था dp अपॉन माइनस dv बाई v, नाउ इट इज dp अपॉन d rho बाय रो. एक बार था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अभी है रिलेटिव चेंज इन द डेंसिटी. सो k इज इक्वल टू dp अपॉन d rho बाय रो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पर यूनिट रिलेटिव चेंज इन द डेंसिटी, दैट इज the bulk modulus. In view process of the compression एक रहता है आइसोथर्मल, एक रहता है एडियाबैटिक compression. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो डिफरेंशिएट किया हमने इसको PdV प्लस VD, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा. ओके, सो उसके बाद एडजस्ट किया, P का इक्वेशन चाहिए इसीलिए इसको यहाँ पे लेके गए, तो माइनस VdP यहाँ पे आया डिवाइडेड बाय dV. सो माइनस dP अपॉन dV अपॉन V, ये V ऊपर था न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया यहाँ पे. P इज इक्वल टू माइनस dV बाय V. Okay, now you can see minus dp divided by dv by v, or dp upon minus dv by v is nothing but your bulk modulus. So k is equal to p. So in view process of the compression, which is isothermal compression, bulk modulus is equal to the pressure. Okay, so for isothermal process the bulk modulus of elasticity is equal to the pressure p. सो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर से इसको डिफरेंशिएट किया. ओके, P इंटू गामा V रेज टू गामा माइनस 1 इंटू dV. ओके, तो यहाँ पे P को कांस्टेंट रखा, V रेज टू गामा का डिफरेंशिएशन किया. ओके, तो V रेज टू गामा का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, V रेज टू गामा माइनस 1. ओके, और गामा यहाँ पे आएगा, उसके बाद V का डिफरेंशिएशन dV प्लस V रेज टू गामा को कांस्टेंट रखा, उसके बाद P का डिफरेंशिएशन dP इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो दिस इज अ सिंपल डिफरेंशिएशन. सो देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द इक्वेशन फॉर गामा इंटू P, गामा इंटू ये P, गामा इंटू P, बाकी सब उस साइड लेके गए. तो V रेज टू गामा dP, ओके, और ये माइनस इधर चला गया, माइनस V रेज टू गामा dP डिवाइडेड बाय V रेज टू गामा माइनस 1 dV. तो यहाँ पे देखिए V रेज टू गामा है, यहाँ पे भी V रेज टू गामा है और डिवाइडेड बाय V है,
तो डिवाइडेड बाय v यहाँ पे आ जाएगा, और v रेज टू गामा और v रेज टू गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा. सो गामा इंटू p इज इक्वल टू माइनस dp divided by dv upon v. Again this is nothing but your bulk modulus. So for adiabatic process, bulk modulus is equal to gamma times the pressure applied. The bulk modulus of elasticity K is equal to gamma times the pressure applied. So next property is viscosity, that is the property of the fluid by virtue of which it offers resistance for the movement of one layer over the others. Okay, the property of the fluid by virtue of which it offers resistance to the movement of one layer over the another layer. तो ये movement of the one layer over the another layer इसका मतलब क्या है, फ्लो है. तो विस्कोसिटी जो भी है वो फ्लो को यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करवाता है. ओके, सो द प्रॉपर्टी बाय विच रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर द फ्लो. ओके, इन अ टेक्निकल लैंग्वेज, for the movement of one layer over the others, that is known as viscosity. In solid, molecules are very closely packed. In liquid, some distance will be there. Okay, so in gases there are many free molecules. Okay, so the property of the fluid by virtue of which it offers resistance to the shear or angular deformation is again viscosity. Viscosity in the liquid is because of cohesion, that is the attraction between same molecules, and molecular moment exchange in the gases. Okay, जो भी एक फिनोमेना रहता है मोलिकुलर मोमेंट एक्सचेंज, ओके, उसके वजह से गैसेस में विस्कोसिटी रहता है. ओके, मोलिकुलर मोमेंट एक्सचेंज मतलब क्या रहता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाता है, तो अपना जो भी मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को देता है, तो वो एक्सचेंज होता है. ओके, तो वहां पे जो भी मॉलिकुलर मोमेंट एक्सचेंज होता है, ओके, उसके वजह से गैसेस में विस्कोसिटी फिनोमिना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहती है. This property is manifested by all the real fluids and it distinguishes them from ideal or non-viscous flow. ओके, तो जो भी विस्कोसिटी है वो रियल फ्लूइड में रहता है, लेकिन आइडियल फ्लूइड में इट इज नॉट देयर. आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 रहता है. सो मोलासेस, स्टार एंड ग्लिसरीन आर एग्जांपल ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड. Okay, because the intermolecular force of attraction between their molecules is very large and consequently they cannot be easily poured or stirred, क्योंकि वहां पे उनका मोशन ही नहीं होगा. ओके, मोशन के लिए वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, दैट इज द cohesive force. Fluids like water, air, petrol have less viscosity. Okay, that's why they can be pour easily and they can flow much easily and rapidly as compared to the more viscous fluid like molasses, tar and glycerin. Okay, so because of their flowability they are known as thin fluids also. So viscosity types, there are two types of the viscosity, absolute and kinematic viscosity. Absolute viscosity is denoted by mu, kinematic viscosity is denoted by nu. SI unit of absolute viscosity is Newton second per meter square, and SI unit of kinematic viscosity is meter square per second. CGS unit for absolute viscosity is dyne second per centimeter square. सिर्फ न्यूटन का जो भी CGS यूनिट है वो डाइन है, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो भी CGS यूनिट रहता है उसको हम पॉइज भी बोलते हैं. सो 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 पॉइज. सो अगर हमने कन्वर्ट किया तो न्यूटन का कन्वर्जन डाइन में 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ओके, 10⁵, और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁴. ओके, सो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज, और 1 पॉइज इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो
उसके अलग अलग यूनिट है, एक है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने पास्कल कंसिडर किया तो पास्कल सेकेंड, या न्यूटन को हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करके किया तो फिर एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट बनेगा केजी पर मीटर पर सेकेंड. Kinematic viscosity denoted by nu. Nu is equal to mu by rho. SI unit is meter square per second. CGS unit मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड का सेकेंड ये रहता है. सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज स्टोक्स. सो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज 10⁻⁴ स्टोक, और 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. So this is an example. A liquid at 20 degree Celsius has a relative density of 0.8, kinematic viscosity of 2.3 centistoke. Determine its unit weight dynamic viscosity in Pascal second. So first you have to see what is the given data, and you know that in RTO mains exam you have to solve the problem within 30 seconds. Okay, तो 30 सेकेंड में आपको प्रॉब्लम पढ़ना है, उसका गिवन डाटा आपको निकालना है, जो भी फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू पूछा है वो यहाँ पे करना है. लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिया है, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया है. तो गिवन डाटा है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एज 2.3 सेंटीस्टोक. ओके, तो सेंटीस्टोक का बनता है 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो न्यू बनेगा 2.3 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है रो ऑफ लिक्विड बाय रो ऑफ वाटर. सो यहाँ से रो ऑफ लिक्विड बन जाएगा 0.8 इंटू 1000 बिकॉज 0.8 इज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो 800 kg पर मीटर क्यूब इज योर रो ऑफ लिक्विड. तो रो ऑफ लिक्विड मिल गया, जी हमको पता है, वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, दैट इज यूनिट वेट. ओके, सो गामा इज इक्वल टू स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी, 800 इंटू 9.81. तो 7848.3 विल बिकम द यूनिट वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब. So dynamic viscosity is equal to nu into rho, kinematic viscosity into density. तो kinematic viscosity दिया है 2.3 into 10⁻⁶, rho दिया है 800. So it will become 1.84 10⁻³ Pascal second. That is the dynamic viscosity. ये दो अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट है यूनिट वेट, दूसरा है डायनामिक विस्कोसिटी. तो एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम ली है. नाउ लेट्स कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर. some questions are there that we have to answer. The standard atmospheric pressure is, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10.33 meter of water column, 76 centimeter of mercury, then 1.033 atmospheric. ओके, तो हमने जब कन्वर्जन देखा था स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, दैट इज 1 atm. ओके, तो हम ये चारों भी ऑप्शन अभी सही लग रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.033 atm है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. 760 mm ऑफ मर्क्यूरी हमने पढ़ा था, तो 760 mm है, तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर दिया है, कन्वर्ट करके दिया है, तो ये भी ऑप्शन है. ओके, 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁵ ऐसा कुछ दिया था. ओके, तो यहाँ पे 10⁵ मल्टीप्लाई किया, न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया, देन इट विल बिकम 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये ऑप्शन भी सही है. और वाटर कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद हमको 10.33 मीटर मिला था, तो ये भी सही है. मतलब इसमें चारों ऑप्शन सही है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. ऑल 1 2 3 4 आर करेक्ट. द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस. ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला है, तो जहां पे रेजिस्टेंस आता है और शियरिंग स्ट्रेस के लिए बोला है, इसका मतलब है मूवमेंट के लिए. जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वहां पे मूवमेंट होता है, फ्लो होता है. तो फ्लो टू द रेजिस्टेंस क्या होता है? विस्कोसिटी. सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, विस्कोसिटी.
Then a real practical fluid possesses which of the following property? Viscosity है, compressibility है, density. तो जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे तो उसमें समझ में आया कि विस्कोसिटी तो रियल फ्लूइड में रहता ही है, बिकॉज दैट इज द थिंग विच इज सेपरेटिंग द रियल फ्लूइड फ्रॉम द आइडियल फ्लूइड. ओके, लेकिन कॉम्प्रेसिबिलिटी भी रहता है, क्योंकि compressibility is जनरल प्रॉपर्टी शोन बाय द रियल फ्लूइड. डेंसिटी भी रहता है हर फ्लूइड के लिए, तो रियल फ्लूइड के लिए भी रहेगा. तो ये तीनों भी प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, इसलिए रियल फ्लूइड के लिए, प्रैक्टिकल फ्लूइड के लिए ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. ऑल ऑफ दीज, that is viscosity, compressibility and density, these are the properties which will be possessed by a real practical fluid. So last answer, the unit of bulk modulus is, it is the ratio of compressive stress per unit volumetric strain. Volumetric strain का तो कोई यूनिट नहीं होता. compressive stress is nothing but your change in pressure. तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसका आंसर है बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है. केजी पर मीटर क्यूब, it is the unit of density, and Newton per meter cube, it is the unit of specific weight. Okay, so I hope you understood this lecture. Thank you very much. In the next lecture we will study the next fluid properties. Thank you.